transmissions. Good morning. Am I audible now? Krishna, Fatma, Mama, Mohit, Mufazzal, टर्न ऑन होता है टर्न ऑन होता है Beyond this is not O2 class. Your camera was full. Okay, so in tomorrow class, we have discussed about Faraday's law in detail. Today I'm going to discuss one more law, that is the Lenz's law. Also has an importance. Okay, so in Faraday's law, we have discussed about the EMF generated in a conductor is proportional to the rate of change of magnetic field linking the circuit. Okay, you can see, I'm just recalling the lecture. When we discussed Faraday's law, we said we have a solenoid right there, a coil of solenoid, a permanent magnet, and I have attached one galvanometer with it. Okay, so according to Faraday's observation, he observed that at V is equals to 0, when velocity of this bar magnet is 0, I feel no deflection in galvanometer. But when I start moving this permanent magnet towards this side, now I feel deflection. Now I feel deflection in this way. Right? So from Faraday's law, we have concluded that stationary magnetic field doesn't induce any EMF. Stationary magnetic field doesn't induce any EMF. You can copy this lecture. Okay? You have to do the same lecture with major copies. So when I am moving the magnet towards the coil, EMF is generated. EMF is generated in the conductor, and how much EMF generated, that is proportional to the change of magnetic field lines. It is proportional to the change of the magnetic field lines.
EMFs. So we have discussed this in in last class, right? And same thing we have discussed that if I move that same magnet in opposite direction now, but deflection will be reversed and it will be in this way. If I move this outward. And similarly, I have also discussed that what are the factors uh, of induced EMF and how much if I try to increase the EMF. So what are the main factors? So main factors are the speed of the permanent magnet. जितनी स्पीड से मूव करोगे परमानेंट मैग्नेट को उतना ही ज्यादा करंट जनरेट होगा. करंट का मतलब यहाँ पर कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट. ये जो करंट है वो इंड्यूस करंट है, स्मॉल आई, राइट? This is a small I, not a capital I. Capital I is a normal current and small I is the induced current. What is the difference between normal current and induced current? Induced current is because of magnetic field, induced due to magnetic field. Current induced due to magnetic field is induced current, right? If they are asking you about what is induced current, so you can say the current which is induced by the magnetic field. Okay. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी लास्ट क्लास में, जो कि फ्राडेस ऑब्जर्वेशन थे, फ्राडेस एक्सपेरिमेंट. इन्होंने जो लॉ दिया है फ्राडेस लॉ वो ये, राइट? तो जो ईएमएफ है जितनी भी जनरेट होती है सर्किट में वो प्रोपोर्शनल है टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. जितना चेंज है उससे प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये एक लॉ इन्होंने कंक्लूड किया था. सिमिलरली मैं सिर्फ सुनने वाली लगाए बैठे. अकबर, आर यू सेइंग एनीथिंग? ओके, लेंस लॉ. अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज अ लेंस. The direction of induced EMF and hence the induced current in the closed circuit is always such that its magnetic effect opposes the motion or change produced in it. Okay, now what does it mean? लेंस लॉ का क्या मतलब है? लेंस लॉ है कि एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा होता है. इसको दिखाने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ आपको और आप उसको कंक्लूड करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है. ये लेक्चर मैं आपको सेंड भी कर दूंगी और यू हैव टू कॉपी इट इन द सेम वे इन योर कॉपीज, राइट? Okay, now you can see here, you know that like poles repel, you know very well, right? So he's actually studying some demonstration to explain you about. You can see that what he tried to explain. You have to conclude it. Okay, you can see that when he dropped this ring from the magnet, so actually this is the poles of magnet, a north pole and the south pole, you know about it. And then he is actually dropping this ring from through the magnetic field actually, because definitely there must be a magnetic field between these both poles. So he is actually trying to drop this under the magnetic field. So how does this ring? This ring is actually, he's created this ring to show you how the solenoid behaves under the magnet, right? So try to look and conclude results. Okay, you can see both because between both of the poles we have a magnetic field.
And when this ring, which is not magnetized before, when it comes in between the magnetic field, so definitely because it's iron core or if it's a steel core, it gets magnetized and it gets in the influence of the magnetic field lines of forces. आपने देखा कि रिंग बहुत स्लोली मूव करके जाया, जबकि अंडर द ग्रेविटी इसको स्लो मूव नहीं करना चाहिए था, इसको फौरन पिघल जाना चाहिए था, ऐसा। ऐसे ही होना चाहिए था ना। You can see that at that point the ring is more velocity that stop, means get constant somehow for some time. So what do you predict by this experiment? We will discuss this experiment again, but what do you conclude from this? Yes, yes, students, what do you conclude from this experiment? Your camera is still off. Camera is still off. जो एक हमने छोटी सी एनिमेशन देखी है और हॉर्स शू मैग्नेट के थ्रू हमने एक आयरन कोर रिंग, जैसे कि ये एक रिंग बना हुआ है, स्मॉल रिंग बना हुआ है सोलेनाइड का, बिल्कुल इसी तरह का एक रिंग लेके आयरन रिंग हमने सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू गुजारा और आपने देखा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो लेसर हो गई, और अगर मैं उसको विदाउट मैग्नेट थ्रो करती तो ऐसा नहीं होता, वो अंडर ग्रेविटी अपनी वेलोसिटी तेज करते हुए नीचे गिर जाए। एक नॉर्मल फ्री फॉल मोशन होता है, बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल फ्री फॉल मोशन आपने देखा है ना, when you are try to fall any ball, वो आराम से ड्रॉप हो जाती है, ऐसे तो नहीं होता है कि रुक रुक कर होती है, लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, अगर मैं वो रिंग बार स्ट्रेट अंडर ग्रेविटी थ्रो करती तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी 0 थी स्टार्टिंग में, इवेंचुअली वो अपनी वेलोसिटी को तेज करती जाती और ड्रॉप कर जाती, राइट? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जब रिंग को थ्रो किया गया है अंडर मैग्नेटिक फील्ड, जब इस रिंग को हम थ्रो कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसको मैंने थ्रो किया है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर जो एक शू बार लगा हुआ है, इसको हम शू बार मैग्नेट कहते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो इस पॉइंट पर आके इसकी वेलोसिटी स्लो क्यों हुई है, तो ये एक्सप्लेन करेगा मुझे, और फिर आफ्टर दिस पॉइंट वो अगेन उस वेलोसिटी को रिगेन कर अर्थ पर अप्रोच करता है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी स्लो क्यों हुई है, इस चीज को एक्सप्लेन करा है लेंस ने कि ऐसा इफेक्ट हमें क्यों मिला, राइट? ये इफेक्ट हमें फील क्यों हुआ। जनरल सी बात है, आप सबको अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये थोड़ी डेवलप हुई होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप अगर किसी फील्ड में जाओगे, ऐसा होता है ना कि अगर हम बहुत तेज किसी बड़े से पंखे के आगे आ जाए और वहां से गुजर रहे हैं, या तो हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें वो अपोज करेगी,
वो फैन इस एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, वो एयर रेजिस्टेंस दे रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस दे रहा है, जिस वजह से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है या स्टॉप हो रही है या कांस्टेंट हो रही है। ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर जब रिंग फॉल करेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके उसकी वेलोसिटी, आपने देखा अपनी आंखों से देखा है कि वो रुक रही है, राइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आया तो वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन हुई इसके अंदर, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, इस रिंग के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड में आकर इसके अंदर इंड्यूस करंट हुआ, यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, राइट। इसको मैं स्मॉल आई से डिनोट करती हूँ। और बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इंड्यूस करंट, चेंजिंग करंट की वजह से मेरी इस रिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, मेरे इस रिंग के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, राइट। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब इस रिंग में भी मेरा एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। अब क्या होगा कि नॉर्थ पोल, ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होगा, और जब इंटरेक्शन होगा तो ये जो वेलोसिटी है दोनों की कम हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन, और इसी चीज को लेंस लॉ हमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पर देखते हैं। अब क्या होगा, अब आप सिमिलरली जो हमने यहाँ पर एक केस में देखा था और एक एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड यू नो व्हेन इट इज मूविंग, राइट, इट इज नॉट स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट स्टेशनरी, नाउ इट्स मूविंग इनवर्ड। तो यहाँ पर भी पोल है, और जब करंट इंड्यूस हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर, राइट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में जो इंड्यूस हुआ करंट, ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, जिस वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो गया। ओके, अब क्या होगा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन देंगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट हुए हैं, तो डेफिनेटली ये रिपल्जन इफेक्ट देंगे, ठीक है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो लेंस लॉ क्या कहते हैं, लेंस लॉ ये कहते हैं, लेंसेस लॉ में हमें ये नजर आता है कि वो द डायरेक्शन of induced EMF in the closed circuit is always such that its magnetic effect opposes the motion or change it produce, ठीक है। मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन एक्चुअली इंड्यूस करंट को ही रोक रहा है, राइट। करंट तो इंड्यूस हो रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस में भी देख लिया है और एक्सपेरिमेंट की प्रूफ भी कर दिया है फ्राडे से। लेकिन लेंस लॉ का पॉइंट क्या आया, वो ये आया कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन हो रही होती है, क्योंकि इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही जैसे, लोग अगर एक मतलब राउंड में आ जाए तो क्या हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह इनकी लड़ाई हो जाती है, इनके इंटरेक्शन की वजह से। इनके इंटरेक्शन होता है और थोड़ी देर के लिए इंटरेक्शन की वजह से वो अपोजिंग करंट, ये इंड्यूस करंट का इफेक्ट रुक जाता है, ये लेंस लॉ समझाना चाह रहा है। और इसी वजह से इनका मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो इनका चेंज है मोशन के अंदर, या जो भी इनके अंदर इंड्यूसिंग करंट में जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए अपोज करता है, रुक जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये है हमारे पास लेंस लॉ, ये अंडरस्टैंडिंग लेंस लॉ में।
जो कि फ्राडिस लॉ ने नहीं दी थी। फ्राडिस लॉ ने जस्ट ये एक्सप्लेन किया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट एंड यू कैन फील डिफ्लेक्शन, जो कि उनके ऑब्जर्वेशन में देखी, एंड ही वाज राइट। ठीक है, फिर उन्होंने रिंग आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट दिया था। दैट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड फॉर द फाउंडेशन बेस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर वर्किंग। नाउ लेंस लॉ ने बिल्कुल सेम ही पॉइंट को लेकर एक अलग बात की। इन्होंने कहा कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो रही है दोनों की, क्योंकि इंड्यूस हो रहा है करंट, लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। और आपने अपने इस प्रैक्टिकल में देख लिया कि यू कैन सी दैट देयर इज अपोजिंग मोशन। यहाँ पे अपोजिंग मोशन था, जो कि आपने देखा कि वो जो कि एकदम से नीचे गिर जाना चाहिए था, वो एकदम से नीचे नहीं गिरा। इट फील सम हिंड्रेंस, some opposing forces. So what is the opposing force? The same force, the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके पहले क्या हुआ, वो मैग्नेटाइज हुआ। कैसे मैग्नेटाइज हुआ? क्योंकि इंड्यूस हुआ करंट, करंट इंड्यूस हुआ। जब करंट इंड्यूस हुआ, चेंजिंग करंट इंड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हुआ। ठीक है, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और जब ये इंटरैक्ट करती हैं तो इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट को, यानी जो अपोजिंग इनका जो मोशन है उसको रोकेगी। ठीक है, आप दोनों लाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आओगे, दे यू विल फील रिपल्जन। बिल्कुल यहाँ पर भी मुझे रिपल्जन फील हो गया। अगर मैं बार मैग्नेट को होल्ड करती हूँ अपने हाथों से यहाँ पर, तो मुझे भी रिपल्जन फील होगी इस इफेक्ट, राइट? जी समझ आया है या नहीं आया है? लेंस का नहीं मुझे समझ आ रहा। लेंस तो समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं बताती हूँ दोबारा से। अभी आपको एनिमेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको इसकी एनिमेशन और अच्छा समझ आएगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं आपको इसके एनिमेशन से इसका इंटरेक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अपने लेक्चर कॉपी में नोट कर सको। मैं अभी आपको एक और एनिमेशन दिखा रही हूँ। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा था, एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं, अगर कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग रह जाती है, so you can go through from this and for better understanding. Okay, so in this animation, you can see that that is a permanent magnet, and definitely it has a magnetic field around it. And when this magnet comes closer to the coil, okay, because of the changing magnetic field, क्योंकि इसकी velocity change हो रही है, तो यहाँ पर इस coil के अंदर current induce हो रहा है. Secondly, the current, because of the current is moving in the solenoid, magnetic field create कर. ठीक है, अब आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे करंट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करने लगा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट, और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा है, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों के अंदर मैग्नेटिक, दोनों की फील्ड्स क्रिएट हो गई। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी, जो एक सच लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है, और सिमिलरली इस परमानेंट मैग्नेट की, तो दोनों की फील्ड यहाँ पर भी नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल। अब आगे देखिए कि इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। आप डायरेक्शन से देख सकते हो कि करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट? Now this magnet is stopped now, means no changing magnetic field. This effect is also stopped, and now there is no magnetic field around the solenoid and no deflection in the needle, and in fact no induced current. ठीक है,
लेकिन ये स्टेट कब है, सिर्फ मूविंग स्टेट है। Now current is zero now. Again, magnet is start moving outward, pull away. Now, the opposite force is generated because now the magnet is moving in the outward direction. You can see the current is induced, but in opposite direction. Okay, so it creates a south pole, not the north pole this time. If the magnet is moving inward, it creates the north pole because now the current's direction is different, right? But this time when magnet is moving outward, so it affects the direction of current induced as well, because of which the different pole is generated. ओके, अभी तक की वीडियो में आपने ये देखा है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना इन दोनों फील्ड्स के बीच में, इंटरेक्शन हमने देखा है। ये इंटरेक्शन क्या करता है इस सॉरी, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, लेंस लॉ जो समझा रहे हैं, आई थिंक अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब आप मैग्नेट इनवर्ड मूव करते हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होता है, और जब आप मैग्नेट को आउटवर्ड मूव करते हो तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होता है। और क्यों क्रिएट होता है ये भी समझ आ गया होगा। Okay, it's not shared on the screen. Now is it visible to all of you? Yes. ठीक है, मैं इसको दोबारा से प्ले कर देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये मैंने लिंक्स शेयर कर दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस सोलेनोइड, ठीक है। और जब भी आपको अकॉर्डिंग टू फ्राडेस लॉ पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, मींस कि यहाँ पे जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इट्स एक्चुअली इंड्यूसेस करंट इन सोलेनोइड। और आपको पता है दैट इज, और ये जो करंट की डायरेक्शन है वो दिस वे है, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जनरेट होने वाला है हमारे पास कौन सा पोल, ये बताएगा कौन सा पोल जनरेट होगा यहाँ पर। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है करंट। यहाँ तक तो आई थिंक मैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में ही हमने समझ लिया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट। फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन दी थी फ्राडेस लॉ ने। उन्होंने कहा था चेंजिंग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं करती करंट, हाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, ठीक है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको डिफ्लेक्शन से, कि जब अगर मेरा मैग्नेट इनवर्ड मूव कर रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है, बट डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो यहाँ पे जो पोल जनरेट करेगी वो होगा नॉर्थ पोल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और मुझे डिफ्लेक्शन भी शो करेगा गैल्वेनोमीटर, और मेरा बल्ब भी ब्लिंक करने लग जाएगा, मेरा बल्ब भी ब्लिंक करेगा। और डिफ्लेक्शन मुझे इस साइड पर होगी, याद रखिए। लेकिन ठीक है, ये एक तो ये इफेक्ट आएगा मेरे पास, और दूसरा क्या इफेक्ट आएगा वो आप ये देखो। आप वीडियो को मैं ऑन कर रही हूँ, आप देखो।
and because of the current induced in the solenoid, a magnetic field is created. And now this both magnetic field are start interacting with each other. यहाँ पे जो दोनों पोल्स क्रिएट हुए हैं, इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, जिस वजह से अपोज पे जो जो लेंस लॉ कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, वो ये देखो, वो ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है आपको। फ्राडेस लॉ आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सारी बातें आपको समझ आ गई कि जब मैं मैग्नेट को करीब लेकर आता हूँ सोलेनोइड के, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो करंट इंड्यूस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ है और वो मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो वो अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। ऐसे ही है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। और इस चेंजिंग करंट की वजह से, क्योंकि करंट एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पोल जनरेट हो रहा है और उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोल जनरेट होगा। नॉर्थ पोल यहाँ पे जनरेट हो रहा है क्योंकि करंट आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर मैग्नेट को मैं इससे अपोजिंग डायरेक्शन में मूव करवाती हूँ, अवे फ्रॉम सोलेनोइड, अब भी इंड्यूस होगा करंट, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है। लेकिन अब जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है पहली डायरेक्शन से, तो अब जो पोल जनरेट होगा वो नॉर्थ नहीं होगा, वो साउथ पोल होगा। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। ये जो पॉइंट थी, ये जो बातें थी सारी, ये फ्राडेस लॉ ने की, और इस वजह से आपके पोल्स जनरेट हो रहे थे और डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। दोनों जब आप इनवर्ड मूव कर रहे हो तो डिफरेंट डायरेक्शन में, और जब आउटवर्ड मूव कर रहे हो तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन फील हो रही है। यहाँ तक की बात की है फ्राडेस ने। लेंस लॉ क्या समझाना चाह रहा है? इसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, लेकिन क्या किस पॉइंट को समझाना चाह रहा है वो ये देखो, जो मैंने यहाँ पर आपको बोल्ड कर दिया है येलो से, कि ये इंटरेक्शन भी तो हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड्स का। जब एक ही तरह की मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा तो अपोज होगा ना। अगर एक ही तरह के दो लोग मैदान में आ जाए जो एक ही स्किल रखते हो, ऑपोजिशन आना लग जाएगा ना, कंपटीशन आने लग जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है, ऑपोजिशन आ रहा है। जब ऑपोजिशन आएगा तो उनका माइंड सेट काम से हट जाएगा और ऑपोजिशन में लग जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी ये अपने काम से हट के थोड़ा लड़ने लग गए। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की आपस में लड़ाई होने लग गई है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जिस वजह से ये जो इंड्यूस हो रहा था करंट, वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, और जब वो रुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, उनका इंटरेक्शन आपस में टूट गया। अगेन दोबारा इंटरेक्शन हुआ, अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रही है। वो ये कहना चाह रहा है, लेंस लॉ आपको ये कहना चाह रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक ही तरह की हैं, नॉर्थ पोल की है, यहाँ भी नॉर्थ पोल की है, तो इस वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, जो आपका इंड्यूस करंट है वो अपोज कर रहा है मोशन को, मैग्नेटिक फील्ड के मोशन को। मींस ये वाला जो करंट है वो इसको धक्के देने लग जाएगा पीछे की तरफ, ये वाला जो पोल है वो उसको धक्का देगा इस तरफ, और ये वाला पोल जो है वो इसको धक्का देगा इस तरफ, ऑपोजिशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि हम न्यूटन थर्ड लॉ में देखते हैं, एक ही तरह की फोर्स अगर हम लगाएंगे तो सपोज मैं बॉल पे कोई फोर्स लगा रही, तो बॉल भी तो मुझ पर फोर्स लगा रही है, मैं किसी को धक्का दूंगी तो वो भी तो मुझे आगे से धक्का देगा। तो यहाँ पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आर ट्राइंग टू पुलिंग आउट ईच अदर टू कैंसिल आउट देयर इफेक्ट, अपोज देयर मोशन। कैंसिल तो नहीं हो रहा, बट अपोज देयर मोशन। और आपने अभी प्रैक्टिकली देखा है कि रियली ऑपोजिशन ऑफ जो आपको उसकी वेलोसिटी में नजर आ रहा है। अब क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस, पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक?